Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video tutorial, we are going to talk about the middle part of Norma Basialis, that is this region, and we will divide it into a median zone and two lateral zones. So first, let's talk about the median zone of the middle part of Norma Basialis. So देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या structures नजर आएंगे. As you can see that the middle part is extending from the posterior border of heart palate from here up to a imaginary line passing in front of the foramen magnum. यहाँ से एक imaginary line गुजरी होती है. So this whole region is the middle part of the Norma Basialis. और इसी को हम study कर रहे हैं. Then we have divided it into a median zone and two lateral zones. So let's talk about the contents of the median zone. First of all, आपको यहाँ पे वोमर bone नज़र आ रही है. This bone, इसका posterior aspect हमें नज़र आता है in the median part. And then there is a broad bar which has been formed by the body of sphenoid and the basiospit. So this is the basiospit or the basilar part of occipital bone, and this is the body of sphenoid, and these two come, you can say, fuse to form the bar, which is called as a broad bar of bone, and these are two bones, basilar bone and the sphenoid bone and the basilar part of the occipital bone, and these are present posterior to the vomer. Okay, then we have seen that the vomer is separating the two posterior nasals. These two are the two posterior nares, and they are being separated by the vomer bone, or we can also call them the posterior nasal apertures. Now we will see that the inferior border of this vomer articulates with the bony palate upwards, and the superior border will split into two ala, these two ala of vomer bone, and at the same time they're also articulating with the body of sphenoid bone right here. Okay, so then we talk about two canals called as a platino-vaginal canal and the vomero-vaginal canal. अच्छा, now what is the vaginal process? अगर बात की जाए, so these two plates lying lateral to the vomer, this is the medial pterygoid plate and this is the lateral pterygoid plate. These both are the parts of the sphenoid bone. अच्छा, होता है कि sphenoid bone के ना हमें internal aspect से एक process निकलता है, that is called as the pterygoid process, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा because this is basilar view. उसका इंटरनल एस्पेक्ट है, वहाँ पे नज़र आता है टेरिकोड प्रोसेस, एंड द टेरिकोड प्रोसेस एंड डिवाइड्स इनटू अ मीडियल टेरिकोड प्लेट एंड अ लेटरल टेरिकोड प्लेट, जो हमें दोनों साइड नज़र आ रही होती हैं, और जो जिसका होता है टेरिकोड प्रोसेस वो हमें सुपीरियर नज़र आता है, जो कि इस व्यू में हमें अप्रिशिएट नहीं हो रहा. सो जो हमारा मीडियल टेरिकोड प्लेट है, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट से हमें इंटरनली एक प्रोसेस जाता हुआ नज़र आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिनल प्रोसेस, एंड दिस वेजिनल प्रोसेस इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद द palatine bone, and these two processes are together forming the palatino-vaginal canal, that is the vaginal process of the middle pterygoid plate and the palatine bone. So वहाँ पर एक in this region we are having the palatino-vaginal canal, and that is important because it gives a passage to certain structures to pass through it, and it opens into the pterygopalatine fossa, जो कि through the towards the region of mouth present होता है. Then we have another canal called as the vomero-vaginal canal. As we know that this is the vomer bone, और यही जो सुपीरियरली इसका जो लेटरल विंग है, इसका जो एला है, उनके लेटरल एस्पेक्ट से एक और कनाल एक्सटेंड करता है और वो यूनाइट करता है विद द वेजिनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिकोड प्लेट. सो दीज टू कम्युनिकेट टुगेदर टू फॉर्म अनदर कनाल कॉल्ड एज द वोमरो वेजिनल कनाल बिटवीन द वोमर बोन एंड बिटवीन द लेटरल पार्ट ऑफ वोमर बोन एंड द वेजिनल प्रोसेस ऑफ द मीडियल टेरिकोड प्लेट. ओके, देन वी आर हैविंग अ ट्यूबरकल कॉल्ड एज द फेरेंजियल ट्यूबरकल. एक्चुअली हमने जो ये बात की थी बेसियोस्पिट जो है, विच इज़ हेयर अ बार ऑफ बोन, इसके मिडिल में एक ट्यूबरकल होता है विच वी कॉल्ड एज अ फेरेंजियल ट्यूबरकल. डेफिनेटली इट मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद द फेरेंजियल टॉन्सिल्स एज वेल, और ये जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है. अच्छा, ये तो बात होगी सारे मीडियल जोन्स की. अब बात करते हैं अबाउट लेटरल जोन्स. लेटरल जोन में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स होती हैं. अच्छा, ये टेरिकोड प्रोसेस की यहाँ पे तो गलत लेबलिंग की हुई है. बाय द वे, ये मीडियल टेरिकोड प्लेट और लेटरल टेरिकोड प्लेट के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, और ये जो मीडियल लेटरल टेरिकोड प्लेट्स हैं ये बेसिकली बाय द डिवीजन ऑफ टेरिकोड प्रोसेस बनी होती हैं, और सुपीरियरली तो टेरिकोड प्रोसेस इकट्ठा ही होता है, बट पोस्टीरियरली ये सेपरेट हो जाता है, और एक वी शेप्ड फोसा उन दोनों को सेपरेट करता है, दैट वी शेप्ड फोसा इज कॉल्ड एज टेरिकोड फोसा. ओके, then these are the bones which are forming the lateral aspect of the middle part of Norma Basialis. यहाँ पे कुछ components मिलते हैं हमें sphenoid bone के, कुछ components मिलते हैं हमें temporal bone के. So in case of the sphenoid bone हमें कौन कौन से parts मिलेंगे? You are saying the pterygoid process, हमें यहाँ पे कोई pterygoid process मिलता है, और साथ हमें greater wing of sphenoid bone, this is the greater wing of sphenoid bone, वो भी नज़र आता है, pterygoid process भी नज़र आता है. In addition to that we also having some components of the temporal bone. उसमें आता है हमारे पास squamous part of temporal bone right here, petrous part of temporal bone, and the tympanic part of your tympanic plate of temporal bone. ओके जी, और क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें? अच्छा, हमने ये बात की कि जो टेम्पोरल वो जो
प्रोसेस है, टेरिगोट प्रोसेस ऑफ स्फेनोइड बोन, वो डिवाइड होता है इनटू अ मिडिल टेरिगोट प्लेट एंड अ लेटरल टेरिगोट प्लेट, वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। ओके जी, और क्या क्या है, अच्छा जी इन फ्रंट, अच्छा एक और डायग्राम, एक और व्यू में हम इसको स्ट्रक्चर को अप्रिशिएट करते हैं। ये अच्छा, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ग्रेटर विंग स्फेनोइड का, और इसके ना बेसिकली ये तो बाहर से नज़र आ रहा है, इंटरनली यहाँ पर मीडियल एस्पेक्ट पे इसकी बॉडी भी होती है स्फेनोइड की, और इंटरनल एस्पेक्ट पर टेरिगोट प्रोसेस भी होता है जो नीचे आकर डिवाइड किया जाता है इनटू अ मीडियल एंड लेटरल टेरिगोट प्लेट। मीडियल तो अंदर की तरफ होगी, लेकिन लेटरल टेरिगोट प्लेट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इन दिस इज अ मिडिल टेरिगोट प्लेट। कहा जाता है कि जो मिडिल टेरिगोट प्लेट है वो सुपीरियरली इन कॉन्टैक्ट होती है विद द पैलेटाइन बोन, यहाँ पे पैलेटाइन बोन भी पड़ी हुई है, तो पैलेटाइन बोन के साथ कॉन्टैक्ट होती है। बट जब बारी आती है ना मैक्सिला बोन के साथ, तो मैक्सिला बोन के साथ से वो सेपरेट हुई होती है, मतलब टेरिगो मैक्सिलरी फिशर जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस इज अ टेरिगो मैक्सिलरी फिशर विच सेपरेटिंग द लेटरल टेरिगोट प्लेट फ्रॉम द मैक्सिला बोन। ओके, अब हम बात करते हैं हमने बात की कि दो प्रोसेसेस है, दो प्लेट्स निकल रही थी फ्रॉम द टेरिगोट प्रोसेस, और उसको हमने नाम दिया था मीडियल एंड लेटरल टेरिगोट प्लेट। अच्छा, ये है ना बॉडी ऑफ स्फेनोइड, ओके, एंड ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड, इन दोनों के दरमियान से प्रोसेस निकल रहा था। दिस इज़ द टेरिगोट प्रोसेस, जो कि अंटेरली से दोनों वो एक साथ ही था, लेकिन पोस्टेरली वो डिवाइड कर रहा था, सॉरी मतलब ये बेसिकली आगे दो प्लेट्स को रीजन दे रहा था। दैट इज़ अ मिडिल टेरिगोट प्लेट, दिस इज़ अ मिडिल टेरिगोट प्लेट एंड दिस इज़ अ लेटरल टेरिगोट प्लेट, और दोनों के दरमियान में एक फोसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगुलर फोसा, द टेरिगो पैलेटाइन फोसा, या सिंपली इसको टेरिगोट फोसा भी कह सकते हैं। द टेरिगो पैलेटाइन नहीं, सिंपली इट्स द टेरिगोट फोसा, एंड दिस वाज द टेरिगोट प्रोसेस, एंड दिस इज अ मिडिल टेरिगोट प्लेट, एंड दिस इज अ बड़ी वाली जो फ्लैटेंड सी प्लेट है, दिस इज अ लेटरल टेरिगोट प्लेट। ओके, अब हम थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिडिल टेरिगोट प्लेट है ना, ये सुपीरियरली इसने थोड़ा सेपरेट आउट होकर एक बनाना है फोसा, दैट इज़ कॉल्ड, ये ट्रायंगुलर सा फोसा इसके अपर एस्पेक्ट में नजर आता है, अपर एस्पेक्ट ऑफ मिडिल टेरिगोट प्लेट, दैट इज़ द स्केफर्ड फोसा, दिस इज़ द स्केफर्ड फोसा ऑन बोथ साइड्स वी कैन सी। ओके, एंड इंफीरियर एस्पेक्ट पे थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, एक लॉन्ग सी प्रोजेक्शन बना देती है, दैट इज़ कॉल्ड द हेम्यूलस, दिस इज़ द टेरिगोट हेम्यूलस, हेम्यूलस मतलब हैमर शेप्ड है, और ये दोनों किसके कंपोनेंट्स हैं, ज़्यादा कंपोनेंट्स होता है मिडिल टेरिगोट प्लेट। देन वी हैव द लेटरल टेरिगोट प्लेट, और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के ना एक मिडिल सरफेस है, एक लेटरल सरफेस है, दोनों प्लेट्स का मिडिल प्लेट हो या लेटरल प्लेट हो, दोनों का एक मिडिल सरफेस होगा, एक लेटरल सरफेस होगा, मिडिल सरफेस होगा, लेटरल सरफेस होगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। अच्छा, जो है ना हमारे लेटरल टेरिगोट प्लेट, उसके कोई इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नहीं है, बट या उसके कहा जाता है कि उसके जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, जो यहाँ पे फिर नजर नहीं आ रहा बिकॉज ये तो एंटीरियर व्यू है ना, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से ना एक स्पाइन से निकलती है, हम बोलते हैं टेरिगो स्पाइनस प्रोसेस, तो वो पता चाहिए कि फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल टेरिगोट प्रोसेस, the lateral टेरिगोट प्लेट, we are having the origin of the टेरिगोस्पाइनस प्रोसेस। फिर हम बात ये करते हैं कि जो इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस है ना ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन का, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस होता है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनोइड बोन, इट इज़ क्वाइट पेंटागोनल, और इसके जो मार्जिन्स वगैरह और इसके जो रिलेशंस है वो इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसका जो इंटीरियर मार्जिन है इट इज फॉर्मिंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, यहाँ पे कहीं होता है हमारा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, सो उसकी जो बाउंड्री होती है वो इसने बनानी होती है, ठीक है। बेसिकली जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, वो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर पढ़ा था व्हेन वी सॉ द डिफरेंट फॉसे ऑफ द स्कल, हमने उसमें पढ़ा था मिडिल क्रेनियल फॉसा, उसमें इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर था इफ़ यू कैन रिकॉल, तो वहाँ पे इंफ्राटेम्पोरल पार्ट था ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड का, तो हमें बाहर नज़र इंटरनली प्रेजेंट था ना, वो बेसिकली यहाँ इस लेवल पे ना कहीं प्रेजेंट होता है एक हमारा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसका पोस्टीरियर जो उसका कंपोनेंट है वो हमारा ग्रेट विंग ऑफ स्फेनोइड बना रहा होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो इसका एंट्रोलेटरल मार्जिन है दैट्स फॉर्मिंग द इंफ्राटेम्पोरल क्रस्ट, इंफ्राटेम्पोरल क्रस्ट इज प्रेजेंट बेसिकली इमीडिएटली, हमें यहाँ लेटरल व्यू नज़र नहीं आ रहा बट समहाउ अप हियर, यहाँ पर इसका जो एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट होता है ना इसका स्फेनोइड बोन का, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन का, वो बना रहा होता है अपर बाउंड्री ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल क्रस्ट। देन वी हैव द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन विच इज़ हेयर, तो डेफिनेटली इसका जो पोस्टरोलेटरल मार्जिन होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड का, वो यूनाइट कर रहा होता है या वो बेसिकली जंक्शन बना रहा होता है या स्ट्रक्चर बना रहा होता है विद द स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है। ओके, फिर सेकेंड लास्ट होता है इसका पोस्टरोमीडियल मार्जिन, दैट्स आर रिलेटिंग विद द पीटर्स टेम्पोरल बोन, डेफिनेटली स्क्वेमस पार्ट के इनसाइड यहाँ पर जाती हुई हमें नजर आती है पीटर्स टेम्पोरल बोन, तो इसका जो एंट्रोमीडियल पार्ट होता है वो पीटर्स टेम्पोरल के साथ ऐसे यूनियन में होता है। एंड देन वी हैव इट्स एंट्रोमीडियल, सॉरी अच्छा एक बात, पोस्टरोमीडियल पार्ट जो होगा ना ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड का, वो आर्टिकुलेट करेगा द पीटर्स टेम्पोरल, एंट्रोमीडियल नहीं पोस्टरोमीडियल, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ही होगा। और ये सारे जो स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ उसके इनसाइड प्रेजेंट है, आउटसाइड हमें जैसे उसकी लोकेशन ऐसे समझ नहीं आ रही है, बट जब हम फोसा देखेंगे तो तब हमें समझ आ जाएगी। ये बेसिकली हमने अभी नॉर्मल लेटरालिस को स्टडी करते इसलिए मैंने इसको इतनी डिटेल में नहीं समझाया। और जो एंट्रोमीडियली है वो फिर कंटिन्यूस होता है विद द
हमारा टेरिगोट प्रोसेस के साथ, जो हमने देखा भी था कि बिटवीन द ग्रेटर विंगस फिनर एंड द बॉडी हमें टेरिगोट प्रोसेस निकलता हुआ नज़र आ रहा था. सो बस यही होता है. सो दिस ऑल वर द स्ट्रक्चर्स जो रिमेनिंग रह गए थे हमारे लेटरल व्यू में. सो दैट वाज ऑल अबाउट द मिडिल पार्ट. कुछ स्ट्रक्चर्स रहते भी हैं लेटरल पार्ट के जो कि हम सेपरेट वीडियो में देखते हैं. सो इसको भी यहाँ पे हम बंद कर देते हैं.